چیز سیکھی ہے وہ یہ کہ کنسٹرکشن انڈسٹری از کالڈ دا مدر آف آل انڈسٹریز. تو کہیں پہ بھی کوئی بھی انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو پہلے کنسٹرکشن ہوتی ہے, اس کے بعد فردر ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو اس میں کنسٹرکشن جو بلڈ ایشیا کا مین مقصد ہے وہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر کے آنا, اور چاہے انٹرنیشنل ہو یا ڈومیسٹک ہو دونوں کے ٹریڈ کو فروغ دینا. تو اس حوالے سے ہم جتنے بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کو 3 دن کے اندر مدعو کرتے ہیں, اور جو کنسٹرکشن مٹیریلس کے حوالے سے لوگ ہیں اور کچھ پروجیکٹس جو بلڈرس کے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ڈسپلے کیے جاتے ہیں. تو بہت شکریہ. تھینک یو فرحان صاحب. جس طرح فرحان صاحب نے کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری مدر آف ایوری انڈسٹری, اور اس کے ساتھ جب ٹیکنالوجی آ جاتا ہے تو اس پوری انڈسٹری کو تڑکا لگ جاتا ہے. پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں وی ہیو ینگ پاپولیشن, اور اس میں انجینئرنگ گریجویٹس آئی ٹی گریجویٹس ہمارے پاس ہیں, اور جس نیچر کے ہیں وہ ہم اس سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور اس وقت ریئل اسٹیٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کر کے ہم ٹرانسپیرنسی کو بھی لا سکتے ہیں. اچھا, یہ جو پروگرام ہمارا پروٹیکٹ کا ہو رہا ہے اس میں اس کا اسپیشل ٹریک ہے ریٹ پر, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ. اور ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ جو ہے اس وقت 600 بلین روپیز کا ریٹ ہو رہا ہے پاکستان میں, ڈفرینٹ ریٹ کمپنیز اس کو کر رہی ہیں. اور ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی بھی لاتا ہے اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کو آرگنائز سیکٹر میں لاتا ہے, اور FATF کی ریکوائرمنٹ کو بھی وہ پورا کرتا ہے. تو اس اسپیشل ٹریک کا پرپز یہ ہے کہ ہم آباد کے بلڈرس ڈیولپرس کو یہ بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ جو ہے اس میں کس طرح سے آباد کے ڈیولپرس اور بلڈرس آ سکتے ہیں, اور کس طرح سے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. جو اس وقت گیپ ہے ہاؤسنگ کا, اس کے بارے میں تو میرے دوست آباد کے بتائیں گے, اور کتنا بڑا گیپ ہے اور کس طرح سے ان کو آباد کیا کر رہا ہے. اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ریٹ جو ہے وہ ایک فائنینشیل گیپ پورا کرنے کے لیے ان کو سپورٹ کرے گا. اور ایک اسپیشل ٹریک پروٹیکٹ میں جو رکھا ہے جس میں لیڈنگ ریٹس, جس میں ڈیولپمنٹ ریٹ, DPL ریٹ, ویلٹاس ریٹس اور ریٹس بھی ہیں جو اس فائنینشیل گیپ کے بارے میں آباد کے ڈیولپرز اور بلڈرس اور باقی انویسٹرس کو بتائیں گے. اب میں ریکویسٹ کروں گا راہیل ریس صاحب سے جو چیئرمین ساؤتھ ریجن ہیں آباد کے, کہ وہ اس پہ روشنی ڈالیں. اور یہ دونوں ایونٹس جو ہیں اسمارٹ سیف اینڈ سسٹینیبل بلڈنگ کنونشن اور دوسرا جو ہے پروٹیک, اس میں ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ہے اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اور ان کے آباد کی کمیونٹی کس طرح سے فائدہ اٹھائے گی. اوور ٹو راہیل ریس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل نعیم صاحب کا بہت بہت شکریہ, عاقب صاحب کا, فرحان صاحب کا, کہ انہوں نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان کو کہ ہم اس پروٹیکٹ کنونشن میں ان کے ساتھ سپورٹ پارٹنر کے طور پہ پارٹیسپیٹ کریں. آباد جو ہے وہ ہمیشہ اپنے فرنٹ فٹ پہ رہتا ہے کسی بھی انوویٹیو ٹیکنالوجی کو, کسی بھی انوویٹیو آئیڈیا کو آپٹ کرنے میں اور ان کو سپورٹ کرنے میں. As the parent industry for all builders and developers across Pakistan, we feel and we believe that یہ ہماری core responsibility ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوٹ یا ڈپارٹمنٹ اگر کوئی انوویشن یا کوئی نیو ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرانے میں اگر مارکیٹ کو اور ڈیولپرس کو اور بلڈرس کو اپنے ساتھ لیتے ہیں تو آباد اس میں سر فہرست رہتے بھی ہیں. اینڈ جیسے کہ نعیم صاحب نے, فرحان صاحب نے آپ کو آلریڈی تھوڑی سی بریف دی ہے, آباد کا پارٹیسپیشن اس ایونٹ کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو پراپرٹی ٹیکنالوجی کے عنوان سے یہ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, لینڈ فیکٹ اور PK اینڈ میک انٹرپرائزز, یہ ایک بہت اچھا اور بہت نیا انیشیٹو ہے, اور اس کے اندر بہت بڑا ویکیوم ہے. آج نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں جو بھی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے, جو بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے, ان کے اندر جو نیو ٹیکنالوجیز, انوویشن کنسٹرکشن سیکٹر میں پوری دنیا میں متعارف کرائی جا رہی ہیں, گرین ہاؤسز کی شکل میں, اسمارٹ ہومس کی شکل میں, وہ آئندہ آنے والے وقت کی اہم ضرورت ہے. اور ہمارے چند ممبران ان ٹیکنالوجیز کو اپنے پروجیکٹس میں آپٹ کرتے آ رہے ہیں, لیکن عمومی طور پہ جو ہے وہ اس کے اندر بڑا فقدان پایا جاتا ہے. اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں میگنا انجینئرنگ اینڈ لینڈ فیکٹ اور PK کے اس انیشیٹو کو ان کولیبریشن ود بلڈ ایشیا. کسی تعلق کے محتاج نہیں, ای کامرس گیٹ وے سے تعلق ہے. فرحان ریس صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور نہ صرف آج بلکہ پچھلے 17-18 سالوں سے یہ
بلڈ ایشیا کے نام سے جو ایگزیبیشن کرتے آ رہے ہیں، نہ صرف ٹیکنالوجی اور انوویشن بائرز، ڈیولپرز اور ایلائڈ انڈسٹری کی جو کمپنیز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے اس میں مجھے آج بھی یاد ہے، آج سے کوئی 10-11 سال پہلے، 12 سال پہلے UPVC کی ونڈوز پہلی دفعہ ہم نے ایز ڈیولپر جو ہے وہ بلڈ ایشیا ایگزیبیشن میں دیکھی تھی، اور آج وہ ایک سب سے کامن چیز ہے، لوگ ایلومینیم سے شفٹ ہو رہے ہیں UPVC ونڈوز پہ. تو یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ جب بلڈ ایشیا نے یہ انیشیٹو لیا اور اس ایگزیبیشن کو کرنے میں یہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے پچھلے 15 سالوں میں، اور یہ 16th ایڈیشن جو ہے بلڈ ایشیا کا کرنے جا رہے ہیں. تو نہ صرف ہم بلڈ ایشیا ای کامرس گیٹ وے کو سراہتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، اور اس پراپ ٹیک کنونشن میں بھی ہم اپنی بھرپور خدمات جو بھی ہم سے توقع کی جائیں گی اس میں ہم اپنی فل سپورٹ کی یقین دہانی کراتے ہیں نعیم کھانانی صاحب کو، عاطف حکیم صاحب کو، فرحان صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو. ہم ویل وشز دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ ایونٹ اور اس کے اندر جتنے بھی لوکل فارن ڈیلیگیٹس ایز اسپیکر پارٹیسپیٹ کرنے آ رہے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور ہم ان چیزوں سے کچھ نئی چیزوں کو سیکھنے میں کامیاب ہوں گے، اور ان کو آگے وقتوں میں، آگے آنے والے وقتوں میں اپنے اپنے جو ہمارے ممبرز ہیں ان کے پروجیکٹس میں انوویشن کو، ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے. فائنلی جیسے نعیم صاحب نے عرض کیا کہ جو انوویشن میں ہم $1.2 بلین یا 1.2 سے 1.5 بلین ڈالر کی ریونیو گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کے آگے آنے والے مراحل میں ہم جب اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے تو یہ ایک بہت بڑی سورس آف ریونیو جنریشن اسٹیٹ کے لیے، اسٹیٹ کے ایکسچیکر کے لیے بن سکتی ہے. تو اس میں ہم بہت پرزور انداز میں اپیل بھی کریں گے، درخواست بھی کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کو، منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کو، اور سب سے بڑھ کر IT منسٹری کو کہ وہ اس میں نہ صرف بلڈ ایشیا کا، میگنا انجینئرنگ کا، لینڈ ٹریک کا، بلکہ آباد کا ساتھ دیں اور اس ایونٹ کا پارٹ بنے، اور آگے آنے والے وقتوں میں ان چیزوں کو منسٹری کے لیول پہ اور فیڈریشن کے لیول پہ بھی پروموٹ کیا جائے. ہم پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ ہوتا ہے کسی بھی اچھے کام کو کرنے میں، لیکن ہمیشہ کی طرح تھوڑا سا فقدان کھایا جاتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے، فیڈریشن کی طرف سے. تو ہم آج اس پریس کانفرنس کی آپ میڈیا کے دوستوں کے توسط سے ہم ارباب اختیار کو، خصوصاً فیڈرل منسٹریز کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آن بورڈ آئیں. یہ اور اس جیسے تمام جو بھی ایونٹس اور کانفرنسز ہوتی ہیں ان کے اندر ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہم نہ صرف کراچی بلکہ پورے ملک کو دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شمار کرنے میں کامیاب ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ. راج صاحب یہ بتا دیں کہ جو بخشی صاحب تھے آپ کے ایز اے پریزیڈنٹ آباد کے اس وقت لو ہاؤسنگ جو گھر تھے ان کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان جب اس وقت تھے اس وقت بات چیت چل رہی تھی. آپ اس کا کیا اسٹیٹس ہے تو یہ بتا دیجیے. اور سیکنڈ یہ کہ اس وقت جو پیداواری لاگت یہاں سے یہاں آ گئی ہے، سینٹرل کے اندر 200 ایسے پروجیکٹ ہیں جو اس وقت بند ہو گئے، اسٹیل، ریا، سیمنٹ، بجری، ساری چیزیں جس کی وجہ سے انپلائمنٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ آپ نے کہا ہمارے فارمر چیئرمین جناب محمد حسن بخشی صاحب بڑا فرنٹ فٹ پہ تھے. نہ صرف بخشی صاحب بلکہ ہمارے پیٹرن ان چیف محسن شیخانی صاحب، ان کے بعد آنے والے چیئرمین آباد فیاض الیاس صاحب، ان پاسٹ گورنمنٹ PTI کی جو گورنمنٹ تھی فیڈریشن میں، فیڈرل گورنمنٹ، ان کے ساتھ لو کاسٹ ہاؤسنگ کا جو جب وہ پاسٹ گورنمنٹ فارم ہوئی 2018 میں، اس سے پہلے 2 ماہ پہلے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آ کے آباد ہاؤس میں ہی اس بات کو اناؤنس کیا تھا کہ وہ 50 لاکھ گھر لوگوں کو مہیا کریں گے، جس میں لو کاسٹ ہاؤسز بھی اور کنونشنل جنرل جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر جو پروگرام انہوں نے ڈیوائز کیا، اس کی تقریباً 3 سال تک ایوری تھرسڈے میٹنگ ہوتی رہی، آئیدر زوم پہ یا ان پرسن پرائم منسٹر ہاؤس میں. اور آباد ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ رہا. اس کے اندر جو اوریجنل کور آئیڈیا تھا لو کاسٹ ہاؤسنگ کا، وہ آباد کا ہی ایک انیشیٹو تھا جس کا نام اس وقت نیا پاکستان یا لو کاسٹ ہاؤسنگ نہیں تھا، وہ آباد لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم تھا. اسی کو فیڈرل گورنمنٹ نے تھوڑا سا ماڈیفائی کیا اور اس کے اندر ترامیم کر کے اس کے اوپر بھرپور قانون سازی ہوئی. بہت زیادہ اس پہ ٹائم اور انرجی سرو ہوئی. انفارچونیٹلی پولیٹیکل انسرٹنٹی، کووڈ کے ایشوز اور ان چیزوں کی وجہ سے 4 سال میں کوئی ایک گھر نہیں بنا. انفارچونیٹلی سندھ میں نہیں بن سکا. پنجاب میں اس کے کئی پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع ہو گئے تھے، ہینڈ اوور نہیں ہو سکے اب تک. اور ظاہر ہے وہ جو آپ نے دیکھا اس سال
फरवरी के बाद से जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मुल्क में आई उसका भरपूर नुकसान जो है वो रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हुआ, और ख़ास तौर पे नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी और लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम जो साबका गवर्नमेंट की थी वो इस वक्त जो है वो आप समझ लें कि डाउन द ड्रेन जा चुकी है। ऑल्दो कि उस पर काम हो चुका है, 2 दिन पहले गवर्नर सिंह जनाब कामरान टेसोरी साहब आबाद हाउस तशरीफ लाए थे और हमने उनके गोश गुजार किया कि उसके ऊपर उस नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट और लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर जितना काम हुआ है इस गवर्नमेंट को या आइंदा आने वाली गवर्नमेंट को एज आबाद एज ए नॉन गवर्नमेंट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हम हमेशा तमाम गवर्नमेंट्स के साथ अपना लियाज़न क्रिएट करते हैं और ये चाहते हैं कि मुल्क और स्टेट के फ़ायदे के लिए काम हो। 18th अमेंडमेंट के बाद जैसा कि आपने सवाल किया, 18th अमेंडमेंट के बाद सूबाई खुद मुख्तारी होने की वजह से जो फेडरल का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट था उसकी जो बेशुमार फ़वाइद हैं वो सिंध गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन की वजह से सिंध में काम करने वाले बिल्डर्स को उनके फ़वाइद डायरेक्टली नहीं मौजूद होते। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट जो साबका गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं उनको आगे लेके चलेंगे, उनके अंदर कोई फ्लॉज हैं, करेक्शंस हैं, आबाद उसमें अपना ताउन और अपना वक्त मज़ीद देने को तैयार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इख्तियार में नहीं है वो चीज़ जो आप सवाल कर रहे हैं। हम अपना ताउन तो पहले भी किया, आज भी करने को तैयार है, लेकिन हम लाचार हैं कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दूसरा आंसर दे दीजिएगा। मुझे आपसे पूछा था कि जो 200 प्रोजेक्ट्स हैं जैसे सेंट्रल के क्या आपके इल्म में है? जी बिल्कुल है। 200 एग्जैक्ट नंबर को तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, बट बेशुमार प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ सेंट्रल में बल्कि सिंध में स्पेशली कराची में भी जो है वो हेल्ड हुए हैं इस वक्त। उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही बुनियादी वजह है कि प्राइस एस्केलेशन जो रॉ मटेरियल की हुई है उसने हम लोगों की स्पेशली बिल्डर्स की जो हाई राइज बिल्डिंग्स कराची में अनाउंस कर चुके हैं 2019 से लेकर 22 तक, उसमें जो प्राइस एस्केलेशन हुई है मोर देन 100%, चाहे वो स्टील हो, सीमेंट हो या दीगर एलाइड प्रोडक्ट्स हो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली, किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाली। लेकिन जब प्राइस बढ़ती है हम ये महसूस करते हैं कि अगले ही दिन उसका इम्पैक्ट, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में आयरन ओर की प्राइस बढ़े जो कि स्टील का बाई प्रोडक्ट है, या इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस बढ़े अगेन वो स्टील का बाई प्रोडक्ट है, तो वेरी नेक्स्ट डे लोकल मार्केट में लोकल री रोलिंग मिल्स जो है वो अपनी प्राइस रिवाइज कर देती हैं। लेकिन आज अगर आप देखें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं, इंटरनेशनल मार्केट में आयरन ओर तकरीबन 20% कम हो चुका है 6 माह में, ऑयल की प्राइस जो है वो तकरीबन 15% कम हो चुकी है, लेकिन स्टील री रोलिंग मिल्स ने आज 1% भी जो स्टील की प्राइस 2,20,000 रुपये टन को तजावुज़ कर रही है उसको कम नहीं कर सके हैं वो। और हम इसमें प्राइस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, तमाम अरबाब इख्तियार को ये मैसेजेस दे रहे हैं, ये अपनी गुजारिशात पेश कर रहे हैं, लेकिन हम लाचार हैं और हम महसूस कर रहे हैं आइंदा आने वाले वक्तों में और मजीद प्रोजेक्ट जो हैं वो बंद हो जाएंगे और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अताब का शिकार ऑलरेडी है और मजीद अताब में आएगी अगर हुकूमत ने इस वक्त बर वक्त इकदाम नहीं लिए और इस इंडस्ट्री को पूरे कराची में तकरीबन 250-300 होंगे प्रोजेक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली ऑल टुगेदर यस, बट होल्ड इतने नहीं है, होल्ड इससे बहुत कम है। कराची में इस वक्त निस्बतन प्रोजेक्ट पंजाब के मुकाबले में ज़्यादा ऑनगोइंग हैं कंपैरेटिवली, लेकिन उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ की जो सेलिंग प्राइस है, जिस प्राइस पे पब्लिक को हमने हमारे मेंबर्स ने अपने अपार्टमेंट्स, विलास, प्लॉट्स ऑफर किए हुए हैं उसमें अभी भी मार्जिन गुंजाइश है। अनफॉर्चुनेटली जो प्रोजेक्ट्स 2019 से पहले के लॉन्च या अनाउंस हुए हैं उन्हें ज़्यादा तकलीफ होगी क्योंकि उन्होंने काफ़ी कम कीमत में बेचा हुआ है। और हम तमाम अहदेदारान को, तमाम अरबाब इख्तियार को, प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट्स को ये मुताबिक रिक्वेस्ट कर चुके हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो आने वाले वक्तों में हमारी शिकायत और तकलीफ का अदा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर देगा, ये 2 प्रोग्राम्स हैं, एक जो 22 दिसंबर को होना है कन्वेंशन, ये 2 प्रोग्राम्स हैं या 24 to 26 के दरमियान होंगे सर? अच्छा, मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ। देखिए, जिस तरह मेरे साथी वेबसाइट पर बैठे फरहान अमीर साहब ई कॉमर्स गेटवे से, ये 3 दिन का एग्जीबिशन है 24, 25 और 26 जिसका नाम बिल्ड एशिया है, जिसका 16th एडिशन ये है। उस बिल्ड एशिया में पहले दिन 24 को 2 कन्वेंशन हो रहे हैं। एक कन्वेंशन जो है वो प्रोटेक्ट के नाम से है और दूसरा जो स्मार्ट सेफ एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के नाम से। स्मार्ट सेफ एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग जो इस वक्त एनर्जी की कॉस्ट है, आप कई देखें तो 28 रुपये और 34 रुपये यूनिट है, एक रेजिडेंशियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये स्मार्ट सेफ एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी बेस पे नेचुरल लाइटिंग, नेचुरल विंडो, ताकि एनर्जी का कंजम्पशन और फुटप्रिंट कम हो। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो हमारे मेरे भाई
जो बिल्डर एसोसिएशन के हैं वो जो अपार्टमेंट्स बनाते हैं वो इस तरह से अपार्टमेंट्स डिज़ाइन हो कि उसमें नेचुरल लाइटिंग का प्रोविजन हो, उसमें नेचुरल वेंटिलेशन हो, ताकि जो बिजली का बिल है वो कम से कम, उसी तरह पानी का जो कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन हो। तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। सेफ के अंदर जो सबसे बड़ा मसला कराची में है वो ये है कि जिन बिल्डिंगों में लिफ्ट्स हैं उनकी इंस्पेक्शन नहीं होती, तो लिफ्ट के थ्रू जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा हैं। दूसरा जो CCTV सर्वेलेंस सिस्टम है वो हर बिल्डिंग में होना ज़रूरी है ताकि ये बिल्डिंग सारी सेफ हो और आगे जाके जब कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनता है तो वो उसके साथ लिंक हो। और स्मार्ट बिल्डिंग वो बिल्डिंगें होती हैं जो डेटा ड्रिवन होती हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं पाकिस्तान में, वो इस पर पूरी उतरती हैं और उनका पूरा डेटा मौजूद होता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, कितना HVAC किया, एयर कंडीशनिंग कंज्यूम किया, कितना पानी कंज्यूम किया, और उसकी वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये जो हम 26 को फर्स्ट हाफ में प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम बिल्डर्स को, डेवलपर्स को, आर्किटेक्ट्स को और उसको आर्किटेक्ट्स को और इंटीरियर डिजाइनर्स को, सिविल इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स सबको मदऊ किया हुआ है जो इन टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे कि आप जो आने वाले घर हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, किस तरह से उन घरों को एनर्जी कंजर्वेशन के साथ डिज़ाइन किया जाए, उनके जो भी एनर्जी इनपुट्स हैं उनको बेहतर किया जाए। अब मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ हाफिज साहब फ्रॉम लैंड टेक्नोलॉजी के, और वो इस पर रोशनी डालेंगे कॉन्फ्रेंस के लिए, कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं उसमें क्या कौन स्पीकर होंगे, क्या ऑडियंस होगी और उसमें क्या प्रेजेंट किया जाएगा, वो बात था। जी बहुत शुक्रिया। 24 दिसंबर को जैसे हमारे पुलिस ने बताया कि 2 कॉन्फ्रेंसेस हैं, और एक शुरू में जो है सुबह के टाइम वो स्मार्ट सेफ और सस्टेनेबल बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर गुफ्तगू है, जिसमें आर्किटेक्ट्स हज़रात अपने नए जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी से जो लिंक्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सस्टेनेबिलिटी के मटीरियल्स यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। इसी तरह से जो सेकंड हाफ में प्रॉपर्टी कन्वेंशन के हवाले से गुफ्तगू हो रही है जिसमें मुख्तलिफ बिल्डर्स हज़रात हैं और नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल जब मकान खरीद रहा है उससे पहले उसको ड्यू डिलिजेंस की खास ज़रूरत होती है, जिसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर गुफ्तगू हो रही है। फिर इसी तरीके से वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से जो सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग को किस तरह से अपने राय में लिया जाए, तो इस पूरे दिन की वहाँ पर कन्वेंशन है। और इसी तरह से जो प्रॉपर्टेक्ट जो नाम है कि रियल इस्टेट के अंदर टेक्नोलॉजी की जो शमूलियत है उसके गैप को कैसे कम से कम किया जाए उसके ऊपर वहाँ पर उस दिन मज़ीद डिस्कशन होगी। तो आप तमाम मेंबरान से दरख्वास्त है कि उस दिन भी वहाँ पर बिल्कुल आएँ और ताकि सब उस प्रोग्राम से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया। ये बताइए जी ओपन फॉर क्वेश्चन। जी हमारा सवाल ये कि आप प्रेस क्लब में आए दिन आपके प्रचार जो आवाज़ डेवलपर के रियल एस्टेट के जो प्रचार वो आपकी इजारा करते रहते हैं, हमारे साथ जाती हुई है, तो इन जातियों का इजारा करने के लिए आप क्या करते हैं? जो आप कानून बनाते हैं और लोगों से एग्रीमेंट करते हैं वो भी अपने फेवर में करते हैं और उनको वो हमारा जो आइन और कानून इससे भी जो है नाराज करते हुए आप करते हैं। तो इस सिलसिले में क्या कहें, कोई नई कानून साजी होनी चाहिए और डेवलपर जो है उसके जो किरदार है, जैसे आप मिसाल दे रहा हूँ नया नाजम का, उसका अगर कोई रहायशी है तो वह एक तरह से किराएदार बन जाता है नया नाजम वाला, तो उसकी अपनी जो है कोई हैसियत नहीं होती है, कभी हमारी प्रॉपर्टी है, हर चीज़ से जो है आने जाने में हर चीज़ में रुकावट है। तो ये बताइए इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? जैसे वैलिया टॉपिक वो बहुत बड़ा माफिया है। थैंक यू सर। आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि यहाँ पर लोग आके कोई एहतजाज करते हैं। हमारी आबाद में एक लॉ एंड ऑर्डर एंड आर्बिट्रेशन कंप्लेंट्स कमेटी है जिसके सीनियर कन्वीनर जनाब मोहम्मद सोहेल वलीद साहब अभी 4 रोज़ पहले अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुए। उनका ताज़ियती रेफरेंस हमने कल आबाद हाउस में मुनक़िद किया है। आप लोगों से भी गुजारिश भी किया और साथी प्रांति को भी मदऊ किया है। हमारी जो कंप्लेंट्स कमेटी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लेंट रिजॉल्व करने का रेशो है 95%। 95% शिकायत जो आबाद में अलॉटीज़ की मौसूल होती हैं बिल्डर्स या डेवलपर्स के खिलाफ, आबाद उसमें हमत अंगोश कोशिशों में मसरूफ़ रहता है
जिनको पिछले 10 साल से मुतफ़र्रिक़ औक़ात में जनाब सोहेल वलिद साहब लीड कर रहे थे, और उनके साथ दीगर मेम्बरान और एक बाकायदा उसकी मुनज़्ज़म कमेटी है, उसके अंदर हमारे फॉर्मर चेयरमैन साहिबान भी हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कंप्लेंट आए, और उसकी एक डेडलाइन हमने रखी हुई है 2 माह के अंदर उस कंप्लेंट को या तो डेवलपर की तरफ से अजाला किया जाता है, या फिर अगर ना हो वो मेंबर, हमारा आबाद मेंबर अगर उस कंप्लेंट को एड्रेस नहीं करता तो उस मेंबर को हम शो कॉज नोटिस देते हैं। और बेशुमार मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ आबाद के साथ ताउन नहीं किया अपने अलॉटीज़ के अजाले में, तो उन्हें शो कॉज नोटिस भी आबाद ने पास में इशू किए हैं और उनकी मेंबरशिप सस्पेंड भी की है। आबाद की मेंबरशिप सस्पेंड होने का सबसे बड़ा नुकसान किसी भी बिल्डर को होता है कि आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट में उनको सेल एनओसी लेने में दुश्वारी होती है, क्योंकि SBCA के कानून के मुताबिक SBCA की सेल एनओसी लेने में आबाद मेंबर होना मैंडेटरी है। इसके बाद आपने अर्ज किया कि नया नाज़िमाबाद, तो नया नाज़िमाबाद भी हमारे मेंबर हैं और उनके अंदर रहने, उस प्रोजेक्ट में रहने वाले तमाम लोगों को लीज और अलॉटमेंट नया नाज़िमाबाद ने इशू की है। जब लीज एक बार इशू कर दी जाती है तो उसके बाद बिल्डर का जो स्टेक है ज़मीन की मिल्कियत से, सब लीज की ही बात कर रहा हूँ, सब लीज जब दे दी तो उसकी जो मालकाना हुकूक है वो 100% उस शख्स को मुंतकिल हो गए। अब रही बात कि अगर एक प्रोजेक्ट मेगा स्केल का प्रोजेक्ट है और उसमें वो डेवलपर अपनी मेंटेनेंस फी लेता है उस प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए, तो वो उनका राइट है। जैसा आप किसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेते हैं, उसकी 5 से 10,000 25,000 एक मुनासिब सी मेंटेनेंस फी होती है, जिसमें वो उसकी सिक्योरिटी के, दीगर पानी के, यूटिलिटीज़ के जो अखराजात होते हैं वो तमाम लोगों में डिवाइड होकर रन किए जा रहे होते हैं। इसी तरह जब किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की, किसी मेगा प्रोजेक्ट की बात होती है तो उसमें ये राइट होता है उस डेवलपर का, ये कानून भी अलाउ करता है, कराची बिल्डिंग टाउन प्लानिंग रेगुलेशन 2002 के तहत भी इस चीज़ की इजाज़त है, और उसके अंदर उनके कानून मुतय्यन किए गए कि कितने गज के मकान पे या फ्लैट पे कितने मेंटेनेंस चार्जेस दिए जाएंगे। उससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ क्लेम करता है कोई डेवलपर तो आबाद उसके खिलाफ आवाज़ उठाता भी है और उस मेंबर की या उस अलॉटी की शिकायत का अजाला भी करता है। अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसे अलॉटीज़ हों जिनकी कोई ऐसी शिकायत हो आबाद के किसी भी मेंबर से, तो प्लीज़ उन्हें आप आबाद हाउस की तरफ कीजिए कि वो वहाँ के अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको बर वक्त उनकी कंप्लेंट और शिकायत का अजाला कर सकें। अच्छा, आपने कहा कि 2019 के जो प्रोजेक्ट है वो उसमें जो सौदे किए गए थे वो बड़े कम रेट पे किए थे। अब वो काफ़ी सारे लोग तो बनाते ही नहीं, उनको काफ़ी वर्ष गुजर जाते हैं, तो उसके बाद वो मुकदमात में चले जाते हैं, तो नुकसान तो उसका होता है जो लाठी वहाँ से पैसे दे बैठता है और उसके बाद वो फिर चक्कर ही काटता है, प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होती। बेशक वजह फरमाया आपने, लेकिन आबाद जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के तहत ये अथॉरिटी नहीं है। अगर कोई डेवलपर या कोई मेंबर आबाद अपना प्रोजेक्ट वक्त पे नहीं शुरू करता या वक्त पे नहीं मुकम्मल करता तो ये इदारे की जिम्मेदारी है। जैसे कि यहाँ कराची की सूरत में SBCA या किसी भी मुतफ़र्रिक़ कैंटोनमेंट जुरिस्डिक्शन में अगर वो प्रोजेक्ट है तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको पाबंद करें कि वो प्रोजेक्ट अपना वक्त पे मुकम्मल करें। आबाद की हद तक जैसे कि सर ने सवाल किया और मैंने बताया कि अगर किसी मेंबर को बर वक्त कब्जा नहीं मिलता या उसका जो बिल्डर है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में कामयाब नहीं होता तो उसको पूरा का पूरा रिफंड अमाउंट करवाना उस बिल्डर की जिम्मेदारी है और आबाद उसमें अलॉटी के साथ ताउन करता है। और उसकी हम बेशुमार आपको मिसालें दे सकते हैं जिसमें लोगों ने हमें अप्रिशिएट भी किया है और हमारा शुक्रिया अदा किया है कि हमने उनके जो रिफंड्स हैं जो रुके हुए थे किसी भी वजह से वो एक्सरसाइज करवाए और उसको हमने अलॉटी की फेवर में डिसीजन करवाया। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। Any other question regarding the आबाद तो आपने पूछ लिया, पर जो 2 कन्वेंशन हो रहे हैं जिसमें हम डेवलपर को बुला रहे हैं ये बताने के लिए कि फ्यूचर में किस तरह से स्मार्ट सेफ और सस्टेनेबल बिल्डिंग्स होकर बनाया जाए, और दूसरा टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किस तरह से होगा कि प्रॉपर्टी की डीलिंग में ट्रांसपेरेंसी आ सके। तो अगर साथी बरादरी का कोई सवाल हो अगर फेलो जर्नलिस्ट का तो ये मैं चाहता हूँ। नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आप लोग नई कानून उस स्टेट से दूसरे कानून जारी करें। अभी आप देखें मिसाल में दे रहा हूँ, नॉर्थ नाज़िमाबाद में कैंप प्लाजा उसको जो है बिल्डर ने दूसरी खरीद की और उसके बाद जो है एक राशन पैदा किया और उसके बाद जबरदस्ती बुलाती है आप ही भी मिल है और उसके बाद उन्होंने करवाया। इसके ऊपर में ख्याल ये भी है कि उसने लंदन से साथ चोरी करके कराची लाई
तो ऐसे वैसे लोग हैं, आप लोगों को जबरदस्ती खाली करवा रहे हैं और उसका मुकदमा दाखिल किया गया। सर ये जहाँ जो लोगों में बैठे हैं हम कानून साथी काम है जो लोग खरीद लेते हैं घर मकान खरीद लेते हैं फ्लैट खरीद लेते हैं उनको भी रहने नहीं दे रहे आप, उनको भी अगर बिल्डिंग मखदूश हो रही है तो आप खाली करें। जो पॉइंट इज बाकी उसके बाद हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर सर्विस। अल्लाह Thank you very much. पहले एक रिवायत करेंगे कि आखिरी हफ्ते में आगे हमारे जो लीडर हैं वो मेरी बात में आ गए, तो अकॉर्डिंगली मैं नीचे थैंक यू वेरी मच।